So hi everyone, we're going to start the class right now. Okay. In the last class, we have completed the portions about the divorce, and we have discussed what are the criteria of the divorce and how the wife or husband, any of the parties, can file for the divorce. We have already discussed it in details. Okay. And we have discussed there are some specific grounds like on which the court can grant for the ex parte decree of the divorce. That also we have discussed in details. Okay. So coming to the next part, we will discuss today upon section 13A onwards that speaks about the alternative relief of the divorce proceeding. Okay. So what does it mean? Alternative relief मतलब अगर किसी को डिवोर्स ग्रांट करना होता है ना, उसी के उसको डिवोर्स ग्रांट ना करके डिवोर्स के बदले any other relief or for the proceeding or any other further procedure, any other process, that is called the alternative relief. Okay, so when we are talking about the alternative relief, then we can talk about that in a divorce proceeding there is the alternative way, that is the judicial separation, which we have already discussed in the last class. I have already told you when both of the parties are not able to stay together with each other. When there is the situation like the husband and wife are so incapable to stay with each other, there is the very serious allegation against each other. There is the very serious disturbances between each other. So the both of the parties, they are not able to stay together with each other. Okay. So when we are talking about the divorce proceeding, okay, there should be the alternative relief for that. If the parties are asking for the divorce, then what the court will do in that case? Instead of granting the divorce, the court will grant for the judicial separation. Okay. Judicial separations means the court will ask the parties to stay separate from each other instead of taking the divorce. Just like if you are using the Instagram or any other specific app, you must have seen where you have the active account. When you are logging out your account, when you are closing your account, when you are deleting your account, then it gives you an option. Do you want to delete the account or do you want to purge your account? जैसे कि you must have know the feature of the Instagram. Every one of you are using Instagram nowadays. Okay, so there is the deactivate option in Instagram. For example, when I'm talking about deleting an Instagram account, when I go to delete the account, before that the Instagram notifies me, do you want to deactivate account instead of deleting it? क्या आप डिलीट करने से अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या है? डीएक्टिवेट करना, टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम द इंस्टाग्राम. अगर आपको अभी इंस्टाग्राम पे नहीं रहना है, अगर आपको अभी अकाउंट यूज नहीं करना है, तो आप कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए आप अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट करके छोड़ सकते हैं, जहां पे आपका अकाउंट किसी को भी नहीं दिखेगा. ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. वैसे ही इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट बोलेगा कि यार आप दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अलग होने से सोचने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो. अगर हो सकता है देन टेक द जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से अलग रह के देख लो. अगर अलग रहने से भी आप लोगों को दिक्कत होना लग जाएगा, अगर आप एक दूसरे से अलग नहीं रह पाओगे, देन ओके, आई विल ग्रांट यू द डिवोर्स. आई डोंट हैव एनी इशू ऑन दैट. बट अलग होने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो, क्या आप एक दूसरे से जुडिशियल सेपरेशन लेके इस मैटर को सुलझा सकते हो? हो सकता है 6 महीना एक दूसरे से, हाँ, हो सकता है 6 महीना एक दूसरे से अलग रहने के बाद आप में से किसी का मन बदल जाए, किसी को ऐसा लगे कि नहीं मेरा पार्टनर मेरे साथ सही है तो मैं उसके पास वापस चला जाऊं, है ना. सो दिस थिंग्स एक्चुअली कम्स टू योर माइंड. ओके, so this is the thing happens when divorce
we are talking about the alternative relief, then court grants as the alternative relief of the divorce is the जुडिशियल सेपरेशन, जहां पे कोर्ट ऑर्डर्स बोथ ऑफ द पार्टीज कि अगर आप एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हो देन यू कैन स्टे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर फॉर द पीरियड ऑफ 6 months और 1 year, एनीथिंग यू वांट टू. एंड आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे अप टू द डिवोर्स portion under section 13, I have made you understand that when we are talking about the divorce now, in the divorce there is a specific clause we have discussed. You must have remembered that अगर जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करने का 1 साल बाद भी ये देखा जाता है कि पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे टुगेदर टू ईच अदर, जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन जो है ना, कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर भी लिया बट उसके बाद 6 महीना चला गया, 1 साल चला गया, उसी के 1 साल के बाद भी ये देखा जाता है कि पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे विथ ईच अदर इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग द जुडिशियल सेपरेशन. जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट होने का 1 साल के बाद भी पार्टी एक दूसरे के साथ रहने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है. इन दैट केस व्हाट हैपेंस? इन दैट केस द कोर्ट विल अप्रूव और ग्रांट द डिवोर्स, बिकॉज यहाँ पे कोर्ट जो जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर देता है ना, वो दोनों पार्टी को ना जुड़ के रखने के लिए देता है, अलग होने के लिए नहीं. कोर्ट का ये मकसद होता है कि हो सकता है कि पार्टीज के अंदर, पार्टीज के बीच में अभी कोई डिस्प्यूट है बट हो सकता है कि ये डिस्प्यूट आगे जाके सही हो जाए, एक दूसरे को समझ जाए, फिर एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे. ये कौन सी बड़ी बात है? सो वी शुड गिव सम टाइम टू द पार्टीज, है ना. बट यहाँ पे क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेटिव रिलीफ, तो यहाँ पे ये होता है ये ना कि कोर्ट ये बोलता है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करते हुए आप हमको 1 साल हो गया, फिर भी 1 साल के बाद भी आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, सो इस कंडीशन पे हम आपको डिवोर्स ग्रांट कर देते हैं, है ना. तो ऑल्टरनेटिव रिलीफ डिवोर्स का क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन, जहाँ पे यूजुअली वाइफ को एलिमनी मिलता है, जब तक वाइफ मतलब वाइफ को पर्टिकुलरली डिवोर्स ना मिल जाए तब तक एलिमनी मिलता है. बट ये जो ऑल्टरनेटिव रिलीफ होता है ना, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है, वो कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं होता है. वो यूजुअली 6 महीने के लिए ही ग्रांट किया जाता है. बट अगर 6 महीने के बाद पार्टी बोलते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ अभी भी रहना नहीं चाहते, देन उस केस पे डिवोर्स ग्रांट हो जाता है ना. क्लियर? Then the next point, divorce by the mutual consent under section 13B of the Hindu Marriage Act. So mutual consent means the consent of the both of the parties. When you are a party and I am a party, party means the husband and wife, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में पार्टी बोल के हम और किसको बोलेंगे? डिवोर्स हो रहा है तो किस किस के बीच में डिवोर्स होगा? हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा, और कोई थर्ड पार्टी तो यहाँ पे आएगा नहीं, राइट? So when we are talking about the divorce by the mutual consent, then we must know that this mutual consent जो होता है ना, ये दोनों पार्टी के तरफ से आना जरूरी है. Okay, when there is the divorce proceeding by the mutual consent of the parties, that means if I am the husband and you are the wife and we are asking for the divorce to the court of law टुगेदर, हम कोर्ट को जाके ये बात बोलते हैं कि अभी हम दोनों अपने साइड से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन वहां पे डिवोर्स का प्रोसीडिंग जो होता है ना, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है. सो द फर्स्ट थिंग यू मे आस्क मी, द फर्स्ट थिंग आप मुझे ये बात पूछेंगे कि मैम आप जो बोल रहे हैं ना कि म्यूचुअल डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट, ये जो म्यूचुअल डिवोर्स होता है और नॉर्मल जो डिवोर्स होता है उसमें फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल डिवोर्स प्रोसीडिंग एंड म्यूचुअल डिवोर्स प्रोसीडिंग, है ना. मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ. देख लो, जैसे कि यू आर फाइलिंग ए कंप्लेन अगेंस्ट समवन,
आप किसी के अगेंस्ट कोर्ट पे जाके किसी भी चीज को लेके कंप्लेन कर देते हैं, है ना। आप किसी के अगेंस्ट कोर्ट में जाके किसी की चीज को लेके कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। वहां पे क्या होता है ना, आप जब कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, देन आपका ओपोनेंट जो पार्टी होता है वो बोलता है कि चलो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि मैंने, आपने फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में जाके मेरे अगेंस्ट एक केस फाइल किया कि मैम हमसे पैसा लेके हमको ठग दिए, हमारा हमको पढ़ाए नहीं, एंड हमको किसी भी तरह का हेल्प नहीं कर रहे, दे हैव शी हैज डन फ्रॉड विथ अस, शी इज नॉट टीचिंग अस प्रॉपर्ली। सो आपने मेरे अगेंस्ट ये केस जाके कोर्ट रूम में मतलब कोर्ट ऑफ लॉ पे कर दिया। देन द कोर्ट विल सेंड ए समन टू मी। तो मैं जाऊंगी कोर्ट पे, मैं बताऊंगी कि नहीं मैंने तो क्लास लिया है, इसका सारा सबूत है, मैंने किसी को कोई फ्रॉड नहीं किया है। सो यहाँ पे क्या होगा ना, हम दोनों के बीच में ना डिस्प्यूट चलता रहेगा। वैसे ही अगर हम डिवोर्स प्रोसीडिंग के बारे में बात करें, थोड़ा सा सोचिए। हस्बैंड जाके बोलता है कि मेरे को अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेगा कि ठीक है तलाक चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, आपका लाइफ है, आप तलाक लेना चाहो, जो करना चाहो उसमें हम तो रोकने वाले कोई होते नहीं है। बट इस चीज बता दीजिए कि तलाक क्यों चाहिए, व्हाई डोंट यू वांट टू स्टे विथ योर स्पाउस। तो आप जाके कोर्ट को अपना एक रीजन देते हो कि ये सारी चीज है, इसी के वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहती। ये चीज कोई भी कर सकता है, अपना पत्नी है या पति है। एंड सेक्शन 13 के अंदर हमने सारा जो ग्राउंड डिस्कस कर लिया। एक ग्राउंड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पति है, ही हैज रिनाउंस दिस वर्ल्ड, मतलब वो संन्यास ले लिया है। कोई भी अभी मतलब दुनिया छोड़ के पूरा बाबा बन गया है। ही इज नॉट स्टेइंग विद द फैमिली एंड ही इज स्टेइंग आउटसाइड द फैमिली। तो ये सीन है उसका। तो जब आपका बारी आता है, तो व्हाट अबाउट यू, उसने आपको डिवोर्स नहीं दिया, बट वो तो आपके साथ भी नहीं रह रहा है। ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, ही इज नॉट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। आप जॉब कर रहे हो, अपना बच्चा खुद संभाल रहे हो, यू आर टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली एलोन, राइट। तो इस केस पे क्या होगा, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना फैमिली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, एंड आप अपना फैमिली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, एंड योर हस्बैंड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, देन देयर इज द सफिशिएंट रीजन इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू कैन फाइल ए डिवोर्स अगेंस्ट योर हस्बैंड। जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एज ए हस्बैंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका और आपके बच्चे का ख्याल रखना। बट अगर उसने संन्यास ले लिया है, ही हैज टेकन द रिनाउंस द वर्ल्ड बाय द रिलीजियस ऑर्डर, संन्यास ले लिया है, दुनिया छोड़ के चला गया है, तो वहां पे आपका हक बनता है अपने पति से तलाक लेना, अपने पति से डिवोर्स लेना, ये बोलना कि अब मैं इस शादी में बंधे हुए रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पति जो है वो मुझसे दूर जा चुका है, एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज कमिंग बैक टू मी, है ना। सो इज दिस से डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट? नहीं, यहाँ पे आपका पति का कोई कंसेंट ही नहीं है, पहला चीज, बिकॉज ही हैज टेकन द sannyas, so he has renounced the world by entering into the religious order. दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल योर हस्बैंड हैज डन क्रुएल्टी विथ यू, है ना। आपका पति आपको मारा है, आपको फिजिकली अब्यूज किया है, तो आप जाके कोर्ट में ये बात बोलते हो कि आपको अपने पति से डिवोर्स चाहिए। सो टेल मी, इज इट ऑलवेज पॉसिबल दैट योर हस्बैंड ऑल्सो वांट्स द सेम? इज इट ऑलवेज पॉसिबल कि अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो उसी को भी डिवोर्स चाहिए होगा? नहीं, क्योंकि अगर उसको चाहिए होगा कि देयर शुड बी समवन टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, घर संभालने के लिए उसको कोई चाहिए, बट वो आपके साथ मारपीट करता है, आपको दारू पी के आपको टॉर्चर करता है, ही डज ऑल काइंड ऑफ क्रुएल्टी विथ यू। सो इवन इफ यहाँ पे उसको आपसे तलाक नहीं चाहिए, उसको आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए, बट आपको उससे डिवोर्स चाहिए, एंड यू कैन प्रूव ऑल योर ग्राउंड्स ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में ये सारे पॉइंट्स प्रूव कर सकते हो कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रहा है, एंड ऑन दिस ग्राउंड आई वांट टू टेक द डिवोर्स।
So this is the divorce by the application of a specific party. If you are a spouse, if you are a husband, then you can file the petition of the divorce against your wife. And if you are a wife, then you can file a divorce petition against your husband. जैसे कि हमने एक चीज जब हम वॉइडेबल मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सॉरी वॉइड मैरिज के बारे में, आई हैव टोल्ड यू वन पॉइंट अंडर सेक्शन 13, याद कीजिएगा, एंड दैट वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 11 जब हम वॉइड मैरिज की बात कर रहे थे। वहां पे मैंने आपको बोला था, जब एक पार्टनर का होते हुए आपका पति या पत्नी दूसरी शादी कर रहा हो, देन दैट कैन बी द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। ओके, आप जिंदा है, आप अपने पति के साथ रह रहे हैं, बट आपका पति दूसरा शादी कर ली है, he has done the second marriage, even though that is not considered as a valid marriage, even if उस शादी को सही नहीं माना जाएगा, फिर भी अगर हम एक जेन्युइन तरीके से बात करें ना, तो दैट इज ए मैरिज, है ना। और उस चीज को लेके देयर इज ए डिस्टर्बेंसेस बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, आपके और आपके पति के अंदर देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, है ना। सो व्हेन देयर इज द disturbances between you and your partner due to this, due to the second marriage, so can it be a ground for the divorce? The answer is yes, it can be the ground of the divorce, because आपका होते हुए उसने दूसरे शादी कर ली है, he has brought someone else to his life, वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपके साथ खुश नहीं रह पाता है। सो यहाँ पे उसी का चाहना और ना चाहने से कोई मतलब नहीं पड़ता है। आप अगर चाहते हैं तो आप अपने पति से डिवोर्स ले सकते हैं, है ना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट, दिस इज समथिंग एल्स। इससे पहले मैंने जितना सारा क्राइटेरिया आपको बताया ना, वो क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, वहां पे आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट applied for the divorce, मतलब if you are a wife, then you have applied for the divorce against your husband, and if you are a husband, then you have applied for the divorce against your wife, है ना। But when we are coming to section 13b, then this is the divorce by the mutual consent। mutual consent का क्या मतलब होता है? It is the consent by the both of the parties. Both of the parties means we are mutually agreeing to do something. We are the husband and wife, we are the spouses together, but there are a lot of disturbances between us. So हम दोनों को ये चीज का अंदाजा लग चुका है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। Even if we try our best, this is not possible to stay together with each other. So when we realize that it is impossible to stay together with each other, then what we will do, we will go to the court of law, and हम ये चीज कोर्ट में बोलेंगे कि अब due to certain grounds we are the husband and wife and we want to take the divorce. So वहां पे कोर्ट आप दोनों का कंसेंट एक साथ ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कंसेंट है, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, and there is no further possibility कि उन दोनों साथ रह सकते हैं. So in these cases, the divorce can be granted quickly. That is called the easiest way of the divorce. And आजकल जो होता है ना, अगर आप कोर्ट रूम का हिस्ट्री थोड़ा बहुत देखेंगे, तो आपका म्यूचुअल डिवोर्स जो होता है ना, सबसे ज्यादा रेशियो किसका है? म्यूचुअल डिवोर्स का ही होता है। आजकल जितना भी डिवोर्स हो रहा है, इफ एनी काइंड ऑफ द डिवोर्स इज हैपनिंग एट ए वेरी रैपिड रेट, दैट इज द म्यूचुअल डिवोर्स इटसेल्फ, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 13b in a little expanded manner. Subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both of the parties to the marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the marriage lodge,
on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, and they have not been able to live together, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. है ना? Next point. On the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition referred to in subsection 1, and not later than 18 months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized, and what the abatements in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with the effect from the date of the decree. Okay. So let's understand the clause 1 and clause 2 of section 13b. Divorce by the mutual consent. What it exactly means, what it actually means. So when we're talking about the first point, it speaks that when both of the parties has mutually agreed that the marriage should be dissolved, जब दोनों पार्टी जो है ना उनको इस चीज का पूरा अंदाजा है, पूरा जानकारी है, and even if they are agreeing on this that the marriage should be dissolved, वो शादी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, they want the marriage to be dissolved. When both of the parties has the same consent on this, then in that case, what will happen? If the parties are not staying with each other, okay, after the commencement of the marriage laws, or after the commencement of the marriage, they are living separately from 1 year, separately with each other from last 1 year. Okay, एक साल से ज्यादा या एक साल हो गया है, दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं. So that can be a very strong ground for the approval of the divorce by the mutual consent of the parties. Okay, yeah. So we are talking about the mutual consent. The first thing I told, when there is the situation that the parties are got married to each other, but it has been the more than 1 year of the marriage, शादी का एक साल से ज्यादा हो चुका है, but still the parties are not staying with each other. Parties जो है वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, they are living separately from each other. So this can be the strong ground for the approval of the divorce. क्योंकि जब कोई पार्टी ना कोर्ट रूम में जाके बोलता है कि हमको डिवोर्स चाहिए, वहां पे कोर्ट क्या करता है? कोर्ट grants for the judicial separation up to 6 months. 6 महीने का जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ग्रांट करता है, एंड ये बोलता है कि आप एक दूसरे से थोड़ा सा अलग रह के देखो 6 महीना, उसी के बाद हम आपको डिवोर्स ग्रांट करेंगे. बट अगर मान लो आपके शादी को 2 साल हो गया है, 2 साल के बाद आप दोनों के बीच में किसी भी डिस्प्यूट हुआ, फिर आप एक दूसरे से अलग रहना शुरू किए, और अलग रहते रहते 1 साल चला गया, तो शादी का 3 साल हो गया है, बट लास्ट 1 साल से आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, एंड यू बोथ आर डिसाइडिंग नाउ कि चलो 1 साल हो गया, हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे विथ ईच अदर. देन उसी केस पे व्हाट द कोर्ट एल्स विल डू? कोर्ट वहां पे क्या फिर से जुडिशियल सेपरेशन इशू करेगा? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शादी को 2 साल हो गया है, फिर 1 साल से अगर पार्टीज एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, इसका मतलब ये है दे आर नॉट एग्रीइंग टू स्टे विथ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के साथ दे पाएंगे, एक दूसरे के साथ आगे रह पाएंगे, इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है आगे जाके. दैट इज वाई द बेस्ट ऑप्शन इज टू ग्रांट द डिवोर्स टू बोथ ऑफ द पार्टीज. डिवोर्स ग्रांट करो, वो दोनों अपनी अपनी खुशी के हिसाब से खुश से रहेंगे, शांति से रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी. पहला चीज ये है. दूसरा क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि मान लो शादी अभी अभी हुई है, देयर इज जस्ट 1 year of the marriage. 1 year मतलब थोड़ा सा
1 साल से कुछ ही दिन आगे गया है मान लो, बट शादी का 1 साल जस्ट पूरा हुआ है, दोनों पार्टी आते हैं कोर्ट में विद द प्रूफ दैट फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज दे आर नॉट स्टेइंग विथ ईच अदर। शादी का 1 महीना उन दोनों में से अच्छा चला था, दे वर स्टेइंग विथ ईच अदर, बट आफ्टर द 1 month they started living separately from each other. Okay, so what about the scenario? जब ये होता है कि दोनों पार्टी को इस चीज का पता होता है कि शादी हो गई, 1 महीना के बाद उन दोनों ने अलग रहने लगे, 1 साल 1 महीने के बाद उन दोनों ने आके बोल रहे हैं कि हमको अभी डिवोर्स चाहिए, हम एक दूसरे के साथ 1 साल से नहीं रह रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट कैन अप्रूव द डिवोर्स इजीली, बिकॉज यहाँ पे इवन शादी को ज्यादा साल नहीं हुआ है फिर भी देर इज द सफिशिएंट ग्राउंड दैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट स्टेइंग टुगेदर सिंस लास्ट 1 year, 1 साल से अलग रह रहे हैं, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट अबाउट द डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। तीसरा चीज क्या होता है, जैसे कि हम समझे थे, कोर्ट ने क्या बोला कि देयर इज द जुडिशियल सेपरेशन बिटवीन द पार्टीज, है ना, 6 महीने का जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। बट ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो जुडिशियल सेपरेशन होता है ना, म्यूचुअल कंसेंट में जो डिवोर्स दिया जाता है, जो प्रोसीडिंग होता है, वो मिनिमम 6 month एंड मैक्सिमम 18 months, 18 महीना से ज्यादा दिन ये चीज नहीं चल सकती। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ओके, ये लिखा गया है अंडर सेक्शन 13B दैट on the motion of the both of the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition and not later than 18 months after the said date, 6 महीने से कम नहीं होगा, 18 महीने से ज्यादा नहीं होगा। आपको अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करती है या फिर कोर्ट बोलता है कि आप 6 महीना का टाइम लीजिए, देन होता है ना कि आप किसी दिन आप नहीं आ पाए, किसी दिन आपका पति नहीं आ पाया, देयर इज द केस ऑफ द मेंटेनेंस ऑल्सो, मेंटेनेंस का भी केस चलता रहता है साइड पे, तो ये सारी चीजों को लेके ना कोर्ट रूम का प्रोसीडिंग आपको पता है तो डिले कहीं ना कहीं हो ही जाता है। बट वो डिले 18 महीना से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 18 महीना मतलब 1.5 साल, मान लो 12 महीना प्लस 6, 18 months मतलब 1.5 साल, 1 year 6 month। तो कोई भी डिवोर्स का प्रोसीडिंग जो है वो 1.5 साल से ज्यादा दिन एक्सीड नहीं करेगा। दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड ये बोला गया है कि 1.5 साल से ज्यादा नहीं होगा, 6 महीना से कम नहीं होगा, एंड द कोर्ट विल ग्रांट द जुडिशियल सेपरेशन। 6 महीने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि अभी भी पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग टू स्टे विथ ईच अदर, दिस इज द नॉट राइट सिचुएशन, द पार्टीज शुड स्टे विथ ईच अदर, देन इन दैट केस ऑल्सो द कोर्ट कैन अप्रूव द डिवोर्स टू बोथ ऑफ द पार्टीज। तो चीजें बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर शादी हो गई है, हाँ यहाँ पे और एक चीज हम रिलेट कर सकते हैं, सेक्शन 13 पे जब हम डिवोर्स की बात पढ़ रहे थे ना, वहां पे हमने एक चीज पढ़ा था, याद है, लाइक वी हैव अंडर द क्लॉज 1I there was a provision that if the parties are not staying with each other since last 2 years, अगर शादी हो गई दोनों की बट 2 साल से ना वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, so that is a strong ground of the divorce also, but in case of the interest of a single party, if I am a spouse, I am having my husband, मेरा पति मेरे को छोड़ के 2 साल से अलग रह रहा है, then that is the ground for me to apply for the divorce कि मुझे डिवोर्स अप्रूव कर दिया जाए। बट अगर हम म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है, पति बोलता है कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, पत्नी बोलता है कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, देन इन दोनों केस पे अगर
एक दूसरे के साथ वो 1 साल से ज्यादा हो गया अलग रह रहे हैं, मिनिमम टाइम पीरियड इज 1 ईयर, 1 साल हो गया एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, देन कोर्ट उस केस पे क्या करेगा, आपको इंस्टेंट डिवोर्स अप्रूव कर देगा। कोर्ट विल नॉट लिंगर द प्रोसेस, क्योंकि वहां पे पार्टीज को एक दूसरे के साथ ज्यादा दिन रहने का पॉसिबिलिटी कम ही है। एंड अगर 1 साल से आप अलग नहीं रह रहे हो, देन कोर्ट विल गिव यू द टाइम स्पैन ऑफ द 6 मंथ, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल सेपरेशन। कोर्ट बोलेगा कि आप दोनों कोशिश करो, आप लोगों का काउंसलिंग होगा, प्रोसीजर जाएगा। फिर अगर 6 महीने के बाद लगेगा कोर्ट को कि नहीं, इस मैरिज को हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते, देन क्या होगा, आपको डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। और याद रखिएगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, सॉरी 6 महीने से कम नहीं होगा, 18 महीना से ज्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स अगर मैं आज डिवोर्स प्रोसीडिंग के लिए फाइल करती हूँ तो 18 महीना के अंदर मेरा प्रोसीडिंग खत्म हो जाना चाहिए। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट विल अंडरस्टैंड, नो पिटिशन फॉर द डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर मैं किसी से शादी कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आज शादी कर रही हूँ और 2 महीने के बाद जाके बोलूंगी कि यार मेरे को अब डिवोर्स चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इसी का, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को इसी अंदाजे पे देखोगे तो कोर्ट ने ये बोला है ना, किसी इंसान को जानने के लिए यू एटलीस्ट नीड 1 ईयर। सो आप अगर अपने पति के साथ आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है, देन आप इंस्टेंटली उसी को डिवोर्स देने का डिसीजन नहीं ले सकते। दैट इज वाई द टाइम पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर। आप शादी के 1 साल तक डिवोर्स का प्रोसीडिंग के लिए पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। एंड यस, वन मोर थिंग, डिवोर्स का जो सारा प्रोसीडिंग होता है ना, वो कहाँ पे होता है? क्या लोअर कोर्ट पे होता है? जैसे कि यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ पे होता है? यूजुअली आपका जो डिवोर्स का सारा प्रोसीडिंग होता है, म्यूचुअल कंसेंट का हो या डिवोर्स फाइल करना हो, कुछ भी हो, दैट यूजुअली हैपेंस इन द सिविल कोर्ट। ओके, सो मैरिज इज ए थिंग ना, यहाँ पे देयर इज द मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर शादी में आपके अगेंस्ट किसी भी तरह का क्रुएल्टी होता है, then that will come under the CRPC and IPC. बट अगर आप अपना शादी को डिजॉल्व करना चाहते हो, that will come under the civil law, and you should remember that वो केस आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपका स्पेसिफिकली एक होता है फैमिली कोर्ट, एंड फैमिली कोर्ट पे आपका डिवोर्स का सारा प्रोसीडिंग, सारा पिटिशन फाइल किया जाता है। द ऑल द प्रोसीजर्स आर फॉलोड ओवर देयर। सो दिस इज ए सिविल प्रोसीजर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द डिवोर्स, and you should remember that all the proceedings of the divorce are carried under the district court only. Okay, clear? तो ये हो गया आपका सेक्शन 14। द नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 15। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? पहला समझा जुडिशियल सेपरेशन किसको बोलते हैं। नहीं नहीं, पहला हमने क्या समझा, व्हाट इज द वैलिड मैरिज, व्हाट इज द वॉइडेबल मैरिज, व्हाट इज द वॉइड मैरिज, ये चार चीज समझा। फिर मैंने आपको समझाया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट किसको बोलते हैं। अगर मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ के बिना बताए बाहर रह रहा है, मेरे से दूर रह रहा है, तो मैं उस केस पे क्या करूं? आई कैन फाइल फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। ओके, फिर हमने समझा कि जुडिशियल सेपरेशन किसको बोलते हैं। फिर थोड़ा सा आगे आया, हमने समझे कि डिवोर्स का क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, किस किस ग्राउंड पे डिवोर्स दिया जा सकता है, पति या पत्नी अपने तरफ से किस किस ग्राउंड से फाइल कर सकता है। फिर थोड़ा सा आगे सेक्शन 13B पे हमने ये डिस्कस किया कि म्यूचुअल कंसेंट पे व्हाट आर द ग्राउंड्स एंड व्हाट आर द रूल्स अंडर व्हिच द पार्टीज कैन अप्लाई फॉर द डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। उसका आगे क्या होता है, मान लो आपका डिवोर्स हो गया, आपको आप कोर्ट से 6 महीने का जुडिशियल सेपरेशन ले लिया, कोर्ट ने आपको डिवोर्स ग्रांट कर लिया। अब क्या होगा, आप करेंगे दूसरी शादी। तो अब जब दूसरी शादी की बात आएगी तो व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द सेकेंड मैरिज, है ना? तो कुछ तो रूल होगा ना, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आज किसी से आपने तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया और कर जाके और किसी से शादी कर लोगे, ऐसा नहीं होता। So there is certain grounds you have to take care of. Okay.
अगर किसी भी तरह का जजमेंट किसी भी कोर्ट से आता है तो आपको क्या करना पड़ता है ना, उसके लिए यू हैव टू फाइल ए पिटिशन इन द हायर कोर्ट, है ना। इसको बोलते हैं अपील। अपील का बात आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि अगर मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी भी तरह का जजमेंट दे रखा है, then I can challenge the decision in the higher court because we have the freedom of the judiciary. We know, like हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, we all have the right for that, है ना। So if the court is granting me the divorce, okay, but my partner is not happy with that decision, तो वो क्या कर सकता है, द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी के अगेंस्ट हाई कोर्ट पे अपील कर सकता है। हाई कोर्ट ने भी बोला कि नहीं, इस केस पे डिवोर्स ग्रांट कर देनी चाहिए, बट उसका मन नहीं भरा, उसने क्या किया, फिर से गया सुप्रीम कोर्ट पे, है ना। एवरी पर्सन हैज द राइट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, अभी हमने पढ़ के आया अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। हमने ये चीज पढ़ के आए हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीमैरिज, जब तक आपका अपील का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ द कोर्ट हैज ग्रांटेड द डिवोर्स and your spouse, another partner, is not happy with that decision and he or she has decided to challenge the decision in the higher court, then उस मामले में क्या होगा, आप दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अपील का प्रोसीजर चलता रहेगा। बट अगर ऐसा हुआ है कि आपका जो भी मतलब यूजुअली आपका क्या होता है ना, 90 डेज का टाइम पीरियड होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको आज कोई भी जजमेंट आ गया, उसी के 60 डेज या 90 डेज के अंदर आपको जाके कोर्ट पे उसी डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना होता है। बट आपने क्या किया, अपील नहीं किया, डिवोर्स का ग्रांट हो गया, 6 महीना चला गया, 6 महीने के बाद जाके आप हाई कोर्ट पे बोल रहे हो कि यार यार मेरे को डिवोर्स मिल गया, मेरे साथ गलत हो गया, मैं अब इसी के अगेंस्ट केस उठाना, मतलब आई वांट टू अपील द डिसीजन। बट उस चीज ना आपका डिसमिस हो जाएगा क्योंकि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर। तो 6 महीने से आप कर क्या रहे थे, आपको अगर इतना ही दिक्कत था ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट तो आप 6 महीने पहले से क्यों नहीं आए, अभी आ रहे हो। तो वी आर सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो उस मामले में आप दूसरी शादी कर सकते हो। बट अगर आपका केस को लेकर, आपका डिसीजन को लेकर, आपके जजमेंट के लेकर आपका दूसरा पार्टनर खुश नहीं है, वो जाके हायर कोर्ट पे अपील कर रहा है और हायर कोर्ट पे केस चल रहा है, क्या आप उस मेन टाइम में शादी कर सकते हो? द आंसर इज नो। इफ माई डिसीजन, इवन इफ लोअर कोर्ट पे, आपका जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे डिसीजन आ गया कि हाँ डिवोर्स ग्रांट हो गया, बट द appeal is pending in the higher court, then in that case also you are not allowed to remarry until and unless the whole procedure is completed. but usually बोला जाता है कि मतलब ये जो फैमिली डिस्प्यूट वगैरह होता है ना, म्यूचुअल कंसेंट पे इतना झंझट नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट पे जो डिवोर्स होता है वहां पे दोनों पार्टीज का कंसेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इजीली एक दूसरे को साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, एलिमनी डिसाइड कर लेते हैं कि 10 लाख 12 लाख कितना पैसा देना है, एंड देन द डिवोर्स इज ग्रांटेड। इट इज अ वेरी इजी प्रोसीजर, बट यूजुअली नॉन ऑफ द पार्टीज आर टेक सर्टन स्टेप्स, क्योंकि दिस इज नॉट ए इजी प्रोसीजर एंड यहाँ पे पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है, तो दिस इज नॉट कन्वीनियंट टू डू। सो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मतलब डिवोर्स ग्रांट कर ही देता है तो वहां पे ही पार्टी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो आगे नहीं बढ़ते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ अंडर सेक्शन 15 वी हैव अंडरस्टूड दैट अगर एक पार्टी को डिवोर्स ग्रांट करवा दिया गया तो दैट इज नॉट द फाइनल डिसीजन until and unless उसका दूसरा जो पार्टनर है जिसी के अगेंस्ट डिसीजन गया हुआ है, ही और सी इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन और वो कोई अपील के लिए स्टेप नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है या ले रही है देन यू हैव टू वेट टिल द completion of the procedure of the appeal and then you are allowed to remarry. Clear? ये हो गया आपका सेक्शन 15। ओके, तो यहाँ पे आपका डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद आपका क्या हुआ, रीमैरिज की बात भी हमने पढ़ ली। देन होता है आपका बच्चे।
शादी हो गई है बट तलाक हो गया है, आप दोनों अलग हो गए हैं, बट आपका बच्चे हैं, यू हैव द चिल्ड्रंस टुगेदर, उनका क्या होगा? व्हाट दे विल डू? उनका माँ बाप है बट माँ अलग है, बाप अलग है, तो व्हाट अबाउट देयर कस्टडी? उनका कस्टडी का क्या होगा? बच्चा किसके पास रहेगा? और बच्चा अगर किसी के पास रहा भी, उसका भरण पोषण का जितना जिम्मेदारी है उसको किसको निभाना है? ओके। एंड अगर मान लो कि आप एक माइनर हो, आपका उम्र 18 साल से कम है, देन योर मैरिज इज इटसेल्फ ए अवॉइडेबल मैरिज, आपका शादी ही रिलेवेंट नहीं है, देन क्या उस मैरिज से आपका जो बच्चा है उसको भी इलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा? अगर आपका शादी भॉइडेबल है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, for example, if you are having a marriage which is a voidable marriage. Voidable marriage means if your age is below 18 years or you are having another partner your partner is having another partner at the time of the marriage. मान लो कि आप किसी से शादी कर लिए, बट उसका ना शादी से पहले that person is having another wife. ओके, शादी से पहले उसका दूसरा भी कोई बीवी है जिसका आपको किसी भी तरह का अंदाजा नहीं है, यू हैव नो आइडिया दैट द पर्सन इज हैविंग अनदर वाइफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज। सो शादी के बाद आप अपने पति के साथ रह रहे हो, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि वो पहले से शादीशुदा है, बट शादी के बाद यू आर हैविंग ए चाइल्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट बच्चा होने के बाद 6-7 मतलब 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, इसका ऑलरेडी कोई बीवी है। सो दिस मैरिज इज इटसेल्फ ए वॉइडेबल मैरिज, ए वॉइड मैरिज, क्योंकि आप उसका जो बीवी हो ना, उसका कोई लीगल राइट आपका नहीं है, क्योंकि आप उसी से दूसरी शादी किए हो। उसका पहला जो पत्नी है ना, वो ही उसी का पत्नी कहलाएगा, आप नहीं कहलाओगे उसका पत्नी। बट इस केस पे आपका उस इंसान से जो बच्चा हुआ है, इज दैट किड ए रिलेवेंट किड? इज दैट किड विल बी कंसिडर्ड एज ए लेजिटिमेट किड? द आंसर इज yes. Even if it is a voidable marriage or a void marriage, it doesn't matters. If the child is produced from the voidable marriage or void marriage, it will be called a legitimate child itself. Okay, so what is exactly the legitimacy of the children of the void and voidable marriage, that we'll discuss in the next class. ओके उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की अबाउट द डिवोर्स प्रोसीडिंग, अबाउट द जुडिशियल सेपरेशन, and what are the conditions of this, and when the divorced person can remarry again, these things we have discussed. So next class से next session पे हम बाकी चीज डिस्कस करेंगे। This is all for today. Thank you so much. Closing the class over here. Thank you. Take care.